we are going to do some fun, वो भी magnets के साथ. So you are right. I am talking about chapter 13, fun with magnets. Discovery of magnets. Magnets were discovered in Greece. It is said that there was a shepherd named Magnus. One day he was taking his sheep for grazing. वह अपनी भेड़ों को चराने के लिए माउंटेन्स पे लेके गया. In his hand there was a stick. Stick was wooden, but at the tip of that stick something made of iron was tied. हो सकता है वहाँ उसने आयरन के वायर को रैप किया हो स्टिक को मजबूत करने के लिए, या फिर कोई आयरन का टुकड़ा बांधा होगा. तो ऐसा हुआ था. What happened then? His stick stuck on a stone. His stick attached to a rock piece and it was not coming out easily. शेफर्ड को वुडन स्टिक को हटाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी. फिर फाइनली वो स्टिक बाहर आई. आफ्टर दिस इंसिडेंट इट वॉज डिस्कवर्ड दैट रॉक हैज समथिंग विच अट्रैक्ट आयरन मटेरियल. और उस रॉक को मैग्नस के नाम पे मैग्नेटाइट का नाम दिया गया. मैग्नेटाइट इज अ मटेरियल विच कंटेन आयरन and from which magnets are obtained. So this is the story behind the discovery of natural magnet. To identify magnetic and non-magnetic material, we will collect some objects like pen drive, screwdriver, nail cutter, dividers, screws, measuring scale. These are objects of day-to-day use of us, and this is our magnet. Now we will bring this magnet near these objects one by one and observe which of the object get attracted by the magnet. So let's start. This scale is not sticking with the magnet and this is sticking with the magnet. ये आ रहा है हमारे साथ. This is divider. ज्योमेट्री बॉक्स में होता है. तो ये देखिए यहाँ पे स्टिक हो गया इजीली. और अभी हम देखते हैं मार्कर जो है जिससे हम बोर्ड पे लिखते हैं. दिस मार्कर इज़ नॉट स्टिकिंग बट अवर नट बोल्ट्स जो रखे हुए थे ये स्क्रू ड्राइवर्स दीज आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेट. सो समथिंग इज स्पेशल इन दिस ऑब्जेक्ट्स विच आर अट्रैक्टिंग एंड समथिंग डिफरेंट in the objects which are not attracting. Lock is get attracted toward the magnet. This nail cutter is attracted toward the magnet. We can see clearly that nail cutter is attracted toward the magnet. This lamp is not attracted, pen drive is not attracted, but this object is attracted toward the magnet. Now these all pins and paper clips are also कलेक्टिवली एक साथ ही अट्रैक्ट हो गई. देखो सारी, क्योंकि ये इनका वेट लाइट था तो मैग्नेट ने इनको इजीली उठा लिया. वहीं लॉक को नहीं उठा पाया बट लॉक भी अट्रैक्ट हुआ था. नाउ पेंसिल इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ वुड, बट वी हैव कैप्चर्ड सम कॉइन्स. सो कॉइन्स आर attracted toward the magnet. Spoon is not attracted toward the magnet because we know that spoon is made up of stainless steel. Spoon stainless steel की बनी होती है तो वो अट्रैक्ट नहीं हुई. वहीं जो हेयर क्लिप्स है वो अट्रैक्ट हो गई. तो इन सब चीज़ों में बच्चों हमने एक कॉमन चीज़ नोट की. These are the objects which get attracted toward the magnet. All these are made up of iron. And these objects which you can see on the screen are not attracted toward the magnet. ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हुए और ये वुड, प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील इस तरीके के मटेरियल से बने हुए. तो हमें एक बात तो पता चली कि आयरन से बने हुए जो मटेरियल होते हैं वो मैग्नेट से चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं. सो वी विल कॉल दीज मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल. सो मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल. आयरन के अलावा निकल और कोबाल्ट के मटेरियल भी मैग्नेटिक होते हैं, वो भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं. सो आयरन, निकल, कोबाल्ट आर मटेरियल विच आर गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेट एंड कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल. एंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेट लाइक वुड, प्लास्टिक, पेंसिल, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, all these are made up of
different material, but commonly they are not attracted by the magnet, so they are collectively called non-magnetic material. So that's all about magnetic and non-magnetic material. Now magnetic poles. Each magnet has two poles. This is one magnet and this is also a magnet. Both these magnets have two poles. One this is pole and another is this. यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पे साउथ पोल होता है, और यहाँ पे जो रेड है वो नॉर्थ पोल है यहाँ पे कॉर्नर पे, और ये साउथ पोल. नहीं आया समझ में, है ना? सो लेट्स डू दैट एक्टिविटी इन विच वी कैन अंडरस्टैंड द पोल्स केयरफुली एंड करेक्टली. Spread some iron fillings on a sheet of paper. So these are iron fillings. I have collected this iron filling from soil. So now I am going to place a bar magnet on this iron filling. This is bar magnet and I am placing this bar magnet here. तो हमने क्या नोट किया, जैसे ही यहाँ पे बार मैग्नेट को रखा गया, आयरन फीलिंग्स जो थी वो मोस्टली इन दो पोल्स की तरफ अट्रैक्ट हुई. ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि वो यहाँ पे मिडिल में आती है. सही. अभी आप एक चीज़ और देखिए, तो what we have observed, do the iron fillings stick all over the magnet? No, we observe that more iron fillings get attracted to some part of the magnet than others. आयरन फीलिंग जो है वो यहाँ पे कॉर्नर्स पे ज़्यादा आ रही हैं, ना कि यहाँ मिडल्स में आयरन फीलिंग्स कम ही अट्रैक्टेड रही, कॉर्नर्स पे आई. तो ऐसा क्यों हुआ? So I am going to repeat this activity by using this magnet. Again what happened? Most of the iron fillings we can see are present at these two corners. Now this is one pattern with which the iron fillings get attracted by different part of the magnet. दोनों मैग्नेट्स के केस में हमने पाया कि जो आयरन फीलिंग्स है एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए मैग्नेट्स के ऊपर अट्रैक्ट हुई. सो वी फाइंड दैट आयरन फीलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड द रीजन क्लोज टू द एंड ऑफ बार मैग्नेट एंड हॉर्सशू मैग्नेट. बार मैग्नेट के पास भी जो आयरन फीलिंग्स थी वो पर्टिकुलर के पास अट्रैक्ट हुई, पर्टिकुलर पोल्स के पास, ना कि दूसरे पार्ट्स में. सो दीज आर पोल्स ऑफ बार मैग्नेट. और अब तो आप समझ गए होंगे कि ये जो दो कॉर्नर्स हैं ये सिर्फ कॉर्नर्स नहीं हैं, मैग्नेट के दो पोल्स हैं. जब ये पोल्स, अगर ये मैग्नेट बार मैग्नेट जो है वो टूट भी जाए, जैसे ये मैग्नेट टूट जाता है, टूट गया, तो यहाँ पर ये अभी नॉर्थ पोल का पार्ट था, बट आफ्टर ब्रेकिंग दिस पोर्शन विल बी, ये साउथ पोल बन जाएगा. देखिए ये साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा. नॉर्थ पोल का टुकड़ा है ये, मैग्नेट के नॉर्थ पोल का टुकड़ा होकर भी ये मैग्नेट के साउथ पोल को रिपेल कर रहा है. जितने इस मैग्नेट के टुकड़े हो जाएंगे, जैसे ही मैग्नेट ब्रेक होता है और टूटता है, इसके अंदर फिर से दो पोल बन जाते हैं. इसमें देखिए यहाँ ये अटैच हो गया, क्योंकि इस मैग्नेट में टूटने के बाद ये जो पोल है जो कि नॉर्थ था, ये नॉर्थ ही रहा और ये साउथ था, बट यहाँ पर ये नॉर्थ पोल का टुकड़ा होकर ये जो है साउथ पोल बन गया और ये नॉर्थ पोल बन गया. तभी ये इस नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो रहा है, हो गया अट्रैक्ट. बट व्हेन आई विल ब्रिंग दिस पीस ऑफ नॉर्थ पोल, जो कि नॉर्थ पोल के टुकड़े से टूटकर हमने लिया, तोड़कर हमने लिया, तो अब ये साउथ पोल के पास आता है, तो इसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को तो अटैच होना चाहिए ना. देखते हैं ये अटैच होते हैं क्या, नहीं हुए.
ये इस मैग्नेट में इस तरफ साउथ पोल है और इस तरफ नॉर्थ पोल, तभी ये आकर इसमें अट्रैक्ट हो रहा है. सो नाउ ईच मैग्नेट हैज 2 पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. Let us play another interesting game to understand repulsion and attraction between magnets. In this, we will use 2 small toy cars and 2 bar magnets, and we will stick these 2 bar magnets on top of those cars. So let's start. अब इस एक्टिविटी में बच्चों मैंने 2 कारें ली है, ठीक है. These are 2 toy cars and I have stick this bar magnet on each car. So let's do our activity. इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दिस इज साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. सो व्हेन द बोथ द पोल साउथ पोल, व्हेन द साउथ पोल आर टुवर्ड ईच अदर, लेट्स सी व्हाट हैपन. वो कोलाइड करती हैं कारें या फिर एक दूसरे से दूर भागती हैं. पहले तो हम ऐसे करके देखते हैं. नो, दे आर नॉट स्टिकिंग, दीज बार मैग्नेट्स आर नॉट स्टिकिंग, दे आर, एंड यू कैन सी so this car is running away from another car. Now here north pole and north pole are toward each other. पिछली कंडीशन में क्या था, साउथ पोल और साउथ पोल सेम पोल जो थे वो एक दूसरे की तरफ थे. अब की बार भी सेम पोल ही हैं बट दोनों नॉर्थ पोल हैं. तो अब देखते हैं क्या होता है. सेम रिस्पॉन्स. अभी भी नॉर्थ पोल एक दूसरे की तरफ है तो भी दोनों कारें एक दूसरे के अवे जा रही हैं. सी, अभी तक तो हमने देखा कि जब सेम पोल एक दूसरे की तरफ होते हैं तो दोनों गाड़ियां एक दूसरे से दूर भागती हैं. अब मैं यहाँ पे एक का मैग्नेट रिवर्स कर देती हूँ. देखो क्या हुआ, कार जो है वो कोलाइड कर रही हैं, दे आर स्टिकिंग. सो दिस टेल अस दैट same poles and different poles have separate reactions or separate response for each other. So let's do another activity. Now we have ring magnets. आप यहाँ देख सकते हैं कि रिंग मैग्नेट्स है. अब जो ये रेड कलर की जो रिंग है ये नॉर्थ पोल को दर्शाती है और इसी रिंग के पीछे की तरफ साउथ पोल है. तो नॉर्थ पोल एक तरफ होता है और साउथ पोल दूसरी तरफ, जैसे कि बाकी मैग्नेट्स में होता है. रिंग मैग्नेट्स में अलग तरीके से होता है. अब इन रिंग्स को मैं ये जो पोल है इसमें डालेंगे. तो हमने जो ये रेड है नॉर्थ पोल ये ऊपर की तरफ करके डाला. अब दूसरी रिंग को भी हम रेड है जो कलर जो कि नॉर्थ पोल है उसको नीचे की तरफ करके डालते हैं, यानी नॉर्थ पोल को एक दूसरे की तरफ फेस करके डाला. See, north pole are not attracting each other. So now take another ring and put it. So we can see that these rings are not attracting or attaching with each other. अब हम रिंग को दोबारा डालते हैं पर दूसरे तरीके से, मतलब नॉर्थ पोल को साउथ पोल की तरफ करके डालते हैं. तो हमने देखा कि वो अटैच हो गई. सो दिस टेल अस दैट सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर. वी कैन सी नॉर्थ एंड साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर एंड नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर. यू कैन सी. टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स. दिस इज़ हॉर्सशू मैग्नेट. इसकी जो शेप है वो हॉर्सशू जैसी है, घोड़े की जो नाल होती है वैसी, इसलिए इसे हॉर्सशू कहा जाता है. दिस इज़ साउथ पोल एंड दिस इज़ नॉर्थ पोल. दिस नेक्स्ट वन इज़ बार मैग्नेट. इन दिस ऑल्सो वी कैन सी 2 poles, साउथ पोल, ब्लू वन इज़ साउथ पोल एंड रेड इज़ नॉर्थ पोल. दिस इज़ रिंग मैग्नेट. इन दिस one side is north pole and this another side, this blue color is showing south pole. So all these are type of